પોરબંદરના માધવપુર બીચ પર જે રીતે ટ્રાય સર્વિસીસ એક્સરસાઇઝ જે છે કહી શકાય કે ત્રણેય જે ભારતીય નેવી, ભારતીય આર્મી તેમજ જે ભારતીય એરફોર્સ છે તેમની જે સંયુક્ત કહી શકાય કે આખી જે એક્સરસાઇઝ છે તે આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે જે ભારતીય નેવીના જે અલગ અલગ જે શિપો જે છે દરિયામાં જોવા મળી રહ્યા છે, તો આર્મીના ટેન્કો તેમજ જે રીતે જે ભારતીય આર્મી તેમજ નૌસેના જે છે તે એક્સરસાઇઝ કરતી હોય છે, કઈ રીતે તેઓ ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરતી હોય છે, તેની જે આખી કહી શકાય કે પ્રદર્શન છે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે તે આપણે જોવા મળે છે. આજે એમ્ફેક્સ 2025 જે આખું જે એક્સરસાઇઝને નામ આપવામાં આવ્યું છે, કઈ રીતે જોઈ શકો છો આપ જે દરિયામાં હેલિકોપ્ટર સહિત જે છે તે આવી રહ્યા છે અને આખી જે એક્સરસાઇઝ છે તે ત્રણેય જે ભારતીય નેવી, એરફોર્સ તેમજ આર્મીની જે કહી શકાય કે તાલમેલ માટે આ જે એક્સરસાઇઝ છે તે ખૂબ જ મહત્ત્વની ગણાય છે અને આ એક્સરસાઇઝ છે તે અમુક સમયના અંતરે યોજાતી હોય છે, જેથીને તાલમેલ છે તે તમામ જે સેનાઓ છે તેમાં જળવાઈ રહે. एक्सरसाइज त्रिशूल का जो अंतिम चरण है उसके लिए यहाँ इकट्ठा है और इस एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार का जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी हम लोगों ने कायम की है, वो एक नया ही प्रतीक है. इतना प्रभावशाली रहा है, एक हमने नया स्तर कायम किया है जिसके लिए मैं अपने ही ट्रुप्स नहीं परंतु वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के जो हमारे मिले जुले दस्तों ने मिलकर इस त्रिशूल को अंजाम दिया है उसके लिए उनकी सराहना करना चाहता हूँ. दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जय नामक मूल मंत्र की घोषणा की थी, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन. अगर मैं जॉइंटनेस की बात करूं तो इस त्रिशूल एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं ने मिलकर एकजुट होकर इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जो कि अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है. जहाँ तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, ये एक्सरसाइज ने हम सबको मौका दिया कि जो उपकरण, औजार, वेपन सिस्टम्स हमारे इंडिजिनस यानी स्वदेशी बने हुए हैं उनको हमने इस्तेमाल किया और उन पे एक नए प्रकार का भरोसा कायम किया. और जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है, इनोवेशन चाहे वो नई तकनीकें हों, नई टैक्टिक्स, नई प्रोसीजर्स हों, उन सब को हमें प्रयोग करने का यहाँ मौका मिला. यदि मैं सदर्न कमांड की बात करूं तो जैसे कि बताया गया आप सबको पहले, पिछले तीन महीने से इसके ऊपर सदर्न कमांड की डेजर्ट कोर, स्ट्राइक कोर, रन और क्रीक में मौजूद दस्ते पूरी एक्सरसाइज की तैयारियां कर रहे हैं. और पिछले 2 दिनों में एक्सरसाइज मरूज वाला जो कि 11 तारीख को संपन्न हुई और एक्सरसाइज अखंड प्रहार जो कि 12 तारीख को संपन्न हुई, उसमें हमने अपने नई तौर तरीकों से लड़ाई करने के लिए नई ऑर्गेनाइजेशंस, नए इक्विपमेंट, उस नए इक्विपमेंट के साथ नई टैक्टिक्स, उन सब को अंजाम दिया. To begin with, I want to thank the Southern Command of the Indian Army and the Southwest Air Command of the Indian Air Force for giving the Indian Navy and the Western Naval Command of the Indian Navy yet another good opportunity for joint planning, joint execution and joint implementation of Trishul 2025. As all of you know, this has been a joint exercise which the Navy has been given the opportunity to be the lead service force. All of you of course are aware that we do these joint exercises regularly. We had one that was coordinated and led by the Indian Army a couple of years back. We had one that was coordinated and led by the Indian Air Force last year, and this year the opportunity was given to the Western Naval Command of the Indian Navy to coordinate and lead. And therefore I thank the Southern Command of the Indian Army and the Southwest Air Command of the Indian Air Force for their excellent performance and wholehearted participation in the exercise. Jointness does not happen simply by talking. Jointness does not happen simply by wanting jointness to happen. Jointness needs to be ensured by working together in a synergized and integrated manner all the way up to the field level. And this is exactly what we have done once again.
ना सिर्फ इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की फोर्सेस ने हिस्सा लिया, इसके अंदर काफ़ी हद तक कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, जो कि सर क्रीक की हमारी कंटिजेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन लोगों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अब ये एक्सरसाइज आज तकरीबन 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली ट्रूप्स वेरियस एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने अपनी प्लानिंग इकट्ठी की इस एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद हम अपने अपने पार्ट्स को लुक आफ्टर करने के लिए अपने अपने हेडक्वार्टर्स एंड उसके बाद अपने ट्रूप्स के साथ में रहे। और अब पिछले 24 घंटे से हम तीनों इस एक्सरसाइज की कल्मिनेशन को विटनेस करने के लिए एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज को देखने के लिए यहाँ आप सब लोगों के सामने हैं। पहली बात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्सरसाइज राजस्थान, गुजरात और कुछ हद तक महाराष्ट्र इलाके में भी खेली गई। एयरफोर्स का एक कंपोनेंट इसके अंदर जो कि हम करते हैं हर साल, जिसको हम बुलाते हैं महागजराज, तो एक्सरसाइज महागजराज को भी इसके बीच में इंक्लूड किया गया। एंड आज पिछले 24 घंटे इकट्ठे बिताने के बाद मैं आपके सामने खड़े होकर बड़ी कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि हमारे ट्रूप्स हर तरीके से तैयार हैं। तकरीबन 35,000 ट्रूप्स हैव टेकन पार्ट।